Assalamu alaikum students. How are you all beta? Hope you will be fine. And after a weekend, today we are here to continue our classes. This is your lecture of English literature, and today we are going to do the comprehensions. You might have done the comprehensions in grade 4, 5 as well. जी comprehensions में बेटा you are given a paragraph, you have to read it, you have to read the paragraph once, twice, or if not here you can read it even thrice. And after that, when every line is clear to you, you have to answer the questions given at the end. Before you answer the questions, one thing should be clear to you, that you have to answer these questions in your own words. It is not necessary that you copy out the words or lines from the passage. It is not necessary. You may write in your own words. Just read the question and try to find its answer in the paragraph. Your answer must be short and to the point. First thing is, your answer must be clear. Always try to be brief and to the point. यानी आपने लंबी उस क्वेश्चन से रेलेवेंट यहाँ पे 2-3 लाइनें हैं तो नॉट रिक्वायर्ड कि आप वो 2-3 लाइनें सारी की सारी ही लिख दें, बट जस्ट आंसर इन सिंपल लाइन्स, सिंपल वर्ड्स में, और शॉर्ट रखें अपने आंसर को, ज़्यादा लंबा नहीं रखना. ट्राई टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी डिटेल्स को ओमिट कर दें. सिर्फ जो पूछा गया है उसको आंसर करें और सिंपल वर्ड्स में. और ठीक है, पहली चीज़ आपने किस बात का ख्याल रखना है व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन इन कॉम्प्रीहेंशन, दैट यू हैव टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. सेकेंडली, जो आपसे पूछा गया आपने सिर्फ उसी को आंसर करना है, और जिस स्टाइल में क्वेश्चन है कोशिश करें कि आंसर भी आपका उसी स्टाइल में जाए. ये नहीं कि आपका क्वेश्चन किसी और तरह, और अगर पैराग्राफ में कुछ और तरीके से वो मेंशन किया गया तो आप पैराग्राफ की लाइंस कॉपी करें. अगर आप पैराग्राफ की लाइंस कॉपी करते हैं तो बेटा दिस इज़ नॉट एप्रिशिएटेबल. आपको कोशिश करनी है कि आप पैराग्राफ की लाइंस कॉपी ना करें, बल्कि जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया है वैसे ही आंसर करें. अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा. And if your question is in past tense, you have to answer in past as well. Be careful now. Okay. Now come to page number 20 of your English literature worksheet. Page number 20, comprehension passage 1. Ji, any one of you will read the passage first? Yes, Huram Fatma. Huram Fatma. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. बेटा रीड द पैराग्राफ क्लियरली. तेज नहीं पढ़ना. One day. Yes, teacher. ज़्यादा तेज नहीं पढ़ना, ठीक है, आराम से. Okay, teacher. So that you may be audible to all of us. Okay. Yes. One day a wolf felt hungry. He wandered here and there in search of food, but he could not find anything to eat. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. He wanted to eat one, but they were gathered by a hound. Guarded by a hound. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. The wolf found himself helpless. At last he hit upon a plan. He hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. The hound could not find out the wolf in disguise.
He killed a sheep and ate it without being caught. In this way, he ate up many sheep, and their number began to fall every day. The shepherd was greatly worried but could not find out the thief. Okay, thank you बेटा. Welcome, teacher. Allah Hafiz. जी, अब आपने ये पैसेज सबने सुना है. लेट मी एक्सप्लेन द पैसेज. एक बार पढ़ा गया, एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो एक बार आप खुद पढ़ें और फिर उस पर आंसर्स ढूंढें. पैराग्राफ इजी है, आपको जल्दी से इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट पहले हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है. कॉम्प्रीहेंशन मीन कॉम्प्रीहेंड करना, यानी उसको अंडरस्टैंड करना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है. उससे हम ये इवेल्युएट करते हैं कि आपको पैराग्राफ समझ आया है. वन डे अ वुल्फ वेंट हंग्री. एक दिन वुल्फ को भूख लगी थी. ही फेल्ट हंग्री, भूख लग रही थी. ही वैंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. ही वैंडर्ड हियर एंड देयर. वैंडर मीन, जी वेंडर आपने पहले भी पढ़ा है. वेंडर मीन वॉक अबाउट एमलेसली, वॉक अबाउट एमलेसली और रोम अबाउट, यानी बेमकसद घूमना. ही वैंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमता रहा. बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. At last mean आखिरकार, finally he saw, उसने देखा, a flock of sheep. Flock of sheep mean भेड़ों का ग्रुप, sheep का ग्रुप. कलेक्टिव नाउन sheep के लिए क्या होता है? flock. Flock of sheep, भेड़ों का ग्रुप. भेड़ों का ग्रुप grazing in a pasture. Grazing eating grass, grazing, eating grass, घास खाता हुआ या चढ़ता हुआ. in a pasture, pasture mean meadow, grassy land. pasture किसे कहते हैं? चरागाह, meadow, grassy land, यानी वो जगह जहाँ उनको सब्जा नजर आता है, वहाँ पे वो घास खा रहे थे एक चरागाह में जहाँ काफी ग्रीनरी थी, सब्जा था. and they had enough to eat. He wanted to eat one. अब he wanted to eat one. अब wolf, obviously he felt hungry, भूखा था वो. और जब उसे अपने सामने भेड़िए को अपने सामने शीप, बेचारी छोटी छोटी सी भेड़ें नजर आई, मासूम सी, तो he wanted to eat one. उसने फौरन चाहा कि उनमें से किसी एक को खा जाए. But they were guarded by a hound. लेकिन उनकी हिफाजत कौन कर रहा था? They were guarded, उनकी हिफाजत हो रही थी. By a hound, एक hound उनकी हिफाजत कर रहा था. What's a hound? Yes, you have read in the story. The hound is a dog, fierce dog, used for hunting as well, or and for detection as well. जी, तो उसने, अब वो उसके लिए पॉसिबल क्यों नहीं था कि वो फौरन से भेड़ को खा जाए, क्योंकि उनकी हिफाजत एक हाउंड कर रहा था. और हाउंड से वो भी डरता था, बिकॉज हाउंड उसको वुल्फ के साथ मुकाबला करता और उसको मार भी सकता था. जी बिल्कुल, आपने स्टोरी पहले पढ़ी है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, उसमें भी आपने पढ़ा है दैट द हाउंड गार्डेड द हंटर्स सन, और उसकी हिफाजत करते हुए उसने वुल्फ को मार दिया था. जी, द शेफर्ड सन वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली. द शेफर्ड सन, शेफर्ड मीन चरवाहा, चरवाहे का बेटा. शेफर्ड सन, चरवाहे का बेटा. शेफर्ड किसे कहते हैं? चरवाहे को. हु यूज टू टेंड द एनिमल्स, जो एनिमल्स की देखभाल करता है, एनिमल्स की लुक आफ्टर करता है. ही इज कॉल्ड शेफर्ड. पढ़ा होगा आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो बचपन में गलाबानी करते थे, ही यूज टू वर्क एज अ शेफर्ड. जब आप अपनी दाया हज़रत हलीमा सादिया के पास होते थे तो वहाँ पे आप उनकी बकरियों को लेके जाया करते थे मीडोज में, पैस्चर्स में ग्रेजिंग के लिए. The shepherd's son was also tending the flock
शेफर्ड का बेटा भी उस फ्लॉक को यानी भेड़ों के ग्रुप को अटेंड कर रहा था, उनकी हिफाजत कर रहा था विजिलेंटली। विजिलेंटली मीन वेरी एक्टिवली, वेरी केयरफुली, बड़े कॉन्शियस होके काम कर रहा था। यानी अब दो लोग फ्लॉक ऑफ शीप को, उस फ्लॉक ऑफ शीप को दो लोग गार्ड कर रहे थे, एक तो शेफर्ड का बेटा एंड सेकेंडली द हाउंड। अगर आप कहीं हिल साइड्स पे जाएं, हिली एरियाज पे, तो आप वहाँ पे भी आपको नज़र आते होंगे कि काफ़ी सारी शीप वो लेके घूम रहे होते हैं और उन शीप में उनके साथ एक दो हाउंड्स होते हैं और साथ शेफर्ड्स होते हैं, यानी वो एक शख्स होते हैं जो उसको इतनी सारी भेड़ों को लेके घूम रहे होते हैं और बीच में उन्हीं शेफर्ड्स में उन्हीं शीप में, उन्हीं भेड़ों में एक तो उनके साथ हाउंड भी होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, मतलब जो ख्याल रखते हैं कि कोई इन पे जानवर अटैक ना कर सके। The wolf found himself helpless. वुल्फ को लगा कि वो हेल्पलेस है, यानी कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। He found himself helpless. उसने खुद को बेयारो मददगार महसूस किया या पाया, उसने खुद को बेयारो मददगार पाया। At last he hit upon a plan. आखिरकार he hit upon a plan. He hit upon a plan. उसे एक तरकीब सूझी। He got an idea. He hit upon a plan. He got an idea. उसे एक आइडिया आया उसके माइंड में। अब क्या आइडिया था कि किस तरह से वो इनकी नज़रों में आए बगैर अपनी भूख मिटा सकता है, कैसे वो एक शीप खा सकता है। अब उसका आइडिया क्या था? He hid himself in the skin of a sheep. He hid himself. उसने खुद को छुपाया in the skin of a sheep. एक भेड़ की स्किन में, खाल में। And safely went into the flock. और हिफाजत से, बाहिफाजत, यानी हाउंड के अटैक के बगैर, उसकी नज़रों में या शेफर्ड की नज़रों में आए बगैर वो खामोशी से उस फ्लॉक में शामिल हो गया, उस भेड़ों के ग्रुप में शामिल हो गया। अब उसका आइडिया क्या था कि उसने इधर आसपास से कहीं किसी डेड शीप की स्किन ढूंढी और वो स्किन उसने खुद पहनी, और जब वो स्किन उसने डेड शीप की स्किन पहनी तो he began to look like a sheep. He was no more looking as a wolf, but he was looking as a sheep because आपको पता है उनकी फिजिक में तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जब उसे उसकी skin put over की, he put up the skin of a sheep, it began to look like a sheep as well, and it got into the flock of sheep. It got into the flock of sheep, and nobody could recognize it. Neither the hound nor the shepherd's son. The hound could not find out the wolf in disguise. Hound could not found out. Hound नहीं पहचान सका the wolf in disguise, के भेष बदल के भेड़िए जो भेष बदले हुए था उसको नहीं पहचान सका। अब वो सिचुएशन क्या थी कि हाउंड भी भेड़िए को उन शीप में नहीं पहचान सका बिकॉज इट लुक्ड लाइक अ शीप, तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर सका कि ये शीप नहीं इनफैक्ट बल्कि ये शीप के डिस्गाइज में, शीप के भेष में एक भेड़िया था। He killed a sheep and ate it without being caught. अब उसे जहाँ कहीं उसे मौका मिला, यानी जब शेफर्ड या हाउंड दूर थे, जब भी उसे मौका मिला उसने जल्दी से एक शीप को मारा एंड एट इट, और उसे खा गया विदाउट बीइंग कॉट, और किसी को भी विदाउट बीइंग कॉट मीन विदाउट बीइंग नोटिस्ड, यानी कोई भी उसको पकड़ नहीं सका, कोई भी उसको नोटिस नहीं कर सका।
विदाउट बीइंग कॉट, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और वो पकड़ा भी नहीं गया, कोई उसे देख भी नहीं सका, बिकॉज उसने जल्दी से जब मौका पाके क्लेवरली उसने भेड़ को मारा और खा गया। इन दिस वे इस तरीके से, इन दिस वे इस तरीके से, ही एट अप मेनी शीप, उसने कई शीप खाई, एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, और उनकी तादाद, एंड देयर नंबर, उनकी तादाद, बिगेन टू फॉल, कम होने लगी, एवरी डे, दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ उनकी तादाद कम होने लगी। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरिड, शेफर्ड बहुत परेशान था, बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को ना पकड़ सका, ना ढूंढ सका, बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को ना पकड़ सका। Now come to the questions. The paragraph is fully explained and you have to answer the questions yourself. जी बेटा, raise your hands who can answer these questions. जी बेटा, जवाद सुभानी, जवाद सुभानी। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद बेटा, आंसर क्वेश्चन नंबर 1। जवाद, he wandered here and there. पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर आंसर दें। Why did the wolf wander about? वंडर नहीं, इट इज वेंडर। जी Wander about. जी, नाउ आंसर। He wandered here and there in search of food. Yes, he wandered here and there in search of food. ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं, the wolf wandered here and there in search of food. Okay. Now, Anas Nabil. Anas Nabil, answer second question. अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर क्वेश्चन बताओ तो सेकंड वाला। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसका आंसर बताएं। Did he find anything to eat? Yes, comma. At last he saw a flock of sheep grazing in a pass. ग्रेजिंग इन अ pasture। बेटा, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि आपने बिल्कुल शॉर्ट आंसर देने हैं, जैसे आपसे सवाल किया है उसी तरह से आपने। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसे कुछ खाने को मिला? जी, क्या मिला था उसे कुछ खाने को? Yes. बेटा, वो तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उनको कैसे खाए, बिकॉज उसको कोई वे आउट ही नहीं मिल रहा था, उसे तो मौका ही नहीं मिल रहा था। लुक एट द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। ये है इसका आंसर। पैराग्राफ को पहले आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है अनस जी? राइट डाउन द आंसर। ये आप साथ साथ बेटा आंसर्स अपनी वर्कशीट पे नोट कर लें, और ये मैं आपको मतलब हैबिट डेवलप करें कि आपने पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स खुद ही लिखने हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगी, आंसर्स आप लोग खुद लिखेंगे। डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट? नो। No. जी, He could not find anything to eat. he could not find, या he did not find anything to eat। ठीक है, ओके। Yes. Thank you. सारा मुबीन। वेयर इज सारा? बेटा अनम्यूट करें। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको रीड करें और फिर आंसर दें। Okay, teacher. Why was the wolf helpless? जी टीचर वो इसलिए हेल्पलेस था क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे खाना खाऊं। बेटा, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश।
Okay, teacher. जी So बेटा, because he would teacher. why was the wolf helpless? क्यों helpless था? Because He would not. He could not know that what happened that बेटा? what can he do? Anybody else can try? जी अमन फैसल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। Why was the wolf helpless? The wolf was helpless because he could not find the way to eat the sheep. Because he could not find a way to eat the sheep, as the sheep were guarded by, The hound and the shepherd's son. yes, this is the complete answer. The wolf was helpless because he couldn't find out the way to eat the sheep, as the sheep were guarded by a wolf, by a hound and the shepherd's son. जी बेटा, अब ये आंसर सब लोग नोट कर लें। थैंक यू बेटा। नोट डाउन इन योर बुक्स, वर्कशीट्स पे अपनी ये आप लोग लिखें। और बेटा ऊपर आपने टॉप पे डेट मेंशन कर ली है सबने? जी, द वुल्फ वाज हेल्पलेस because the sheep were guarded by a hound and the shepherd's son, and the wolf could not find out the way to eat the sheep. Okay. Azwadin. अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंसर क्वेश्चन नंबर 4। जी टीचर। Teacher, how did he get into the flock? He hid himself in the skin of a sheep and safely went in the flock. Yes, he hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. Is it clear? बेटा सब लोग नोट कर लें, मैं इसीलिए थोड़ा आपको टाइम दे रही हूँ, उसके साथ साथ सबका होता जाए। जी अहमद फारूक। टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर पूरे लेक्चर में आपकी आवाज बहुत कम आती रही है। क्यों बेटा, मैं तो सही बोल रही हूँ, आपके उसमें ना कोई मसला हो। Why was the shepherd worried? ये क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा आंसर दें। जी अहमद फारूक बेटा, आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्या हो गया बेटा, आप गायब हो गए हैं? रयान अब्बास। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही थी पूरे लेक्चर में। रयान अब्बास बेटा, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर आंसर पहले नहीं आ रही थी जब आप 4 और 5।
चले 4 में क्या मुश्किल थी? हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक? इसका आंसर क्या है? ढूंढ लिया आपने? He hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. He hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. Why was the shepherd worried? Shepherd क्यों परेशान था? Teacher, the shepherd was greatly worried but could not find out the thief. वो परेशान क्यों था? Because the sheep number of sheep of the sheep because the number of sheep began to fall because the number of sheep began to fall every day. जी, because the shepherd was worried. The shepherd was worried because the number of sheep began to fall every day. Because the number of sheep began to fall every day. Ji, now the last question is Ahmed Sadiq beta, answer last question. बेटा आप लोग अनम्यूट करने में इतनी देर लगा देते हैं. अहमद सादिक. जी. अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 6. Did he find out the thief? No, he did not find out the thief. Yes. क्या उसे चोर का पता चल गया? No, he could not find out the thief. No, he could not find out the thief. No. टीचर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 3 आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बेटा आप लोग खुद लिखने की कोशिश करें, मैं आपको डिक्टेट तो नहीं करवाया करूंगी बिकॉज पेपर में आपके अनसीन आएंगे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. चले मैं अभी बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, why was the wolf helpless? The wolf was helpless because the sheep were guarded by a hound and the shepherd boy. Okay, teacher. And question number 5, why was the shepherd worried? The shepherd was worried because the number of sheep began to fall every day. Okay, thank you, teacher. You are welcome, beta. Now your comprehension paragraph 1 is complete. If you want to ask something, you can ask.